Hello friends, welcome. I am Samin Sheikh, working as an assistant professor in KVN Naik College, Nasik. Today we are going to introduction of spectroscopy. Friends, we are study a lot of chemicals. केमिकल की पढ़ाई करने के लिए हमें उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए. अगर हमें उसका स्ट्रक्चर मालूम होगा तो हम उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आसानी कर सकते हैं, या फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर से हम स्ट्रक्चर असाइन कर सकते हैं. Therefore, physical and chemical property is helpful to assign the structure of the compound, or structure of the compound is helpful to assign the physical and chemical property. This can be done by two methods. The one is chemical methods, another is physical methods. In chemical methods, a lot of tests is carried out on the compound. Therefore, more number of chemicals is required. Also, more number of quantity of the chemical as well as unknown compounds also required. More time is required in case of chemical method. Therefore, this is the main drawback of the chemical method. But in case of physical method, the physical and chemical property or structure of the compound are studied only by observation, that is determination of melting point, boiling point, refractive index, dipole moment, and so many properties. Also, the less amount of compound is required for physical method, and after completion of the analysis, the compound is recovered. दोस्तों, less time is also required in case of physical method. One of the famous physical method, and name of this method is spectroscopy. The spectroscopy is a useful method to determine the structure of the compound. दोस्तों, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? We know that the study of interaction of light with matters, that is called as spectroscopy. लेकिन दोस्तों, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करने के पहले हमें लाइट का फॉर्म मालूम होना चाहिए. लाइट होती क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी हम कैसे देखते हैं? तो दोस्तों, फर्स्ट, लाइट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. The next one is, what is mean of electromagnetic radiation? Means the radiation consists of the electrical field as well as magnetical field. दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं जो ब्लू कलर में दिखाई है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और जो पिंक कलर में दिखाई देती है वो मैग्नेटिकल फील्ड है. दोनों फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं. जब भी लाइट हमेशा वेव फॉर्म में मूव होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमा और द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द electrical field and end point of the electrical field, the distance between that is called as wavelength. It is denoted by simply lambda. Therefore, wavelength is nothing but the distance. Therefore, unit of the wavelength is nanometer, centimeter, micrometer, angstrom. बहुत स्मॉल होती है दोस्तों ये लाइट की वेवलेंथ. द नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करो, ये पॉइंट है दोस्तों. इस पॉइंट में से कितने वेव पर यूनिट टाइम में पास हो सकते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. देखो, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम. द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज. द नेक्स्ट पॉइंट, द रेसिप्रोकल of the wavelength is called as wave number. Therefore, wave number u bar equal to 1 upon lambda. दोस्तों, इस लाइट को एक तरह की एनर्जी होती है और ये एनर्जी हम क्वांटा के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. Therefore, energy equal to s into v, that equals 1 quanta. S means Planck constant, v means frequency of the light. But one of the famous equation for the velocity of light, that is equal to frequency into wavelength. दोस्तों, any types of electromagnetic radiation, the velocity means speed of that electromagnetic radiation are always same. मतलब यूवी कौन सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड दोस्तों क्या होता है, सेम होता है. Therefore, from this equation the E equal to SC upon lambda.
but 1 upon lambda equal to u bar. Therefore this energy equal to Sc into u bar. Hence energy is directly proportional to frequency. Energy is inversely proportional to wavelength, but energy is also directly proportional to wave number. दोस्तों अगर लाइट की बात की तो सम स्पेसिफिक रेंज की लाइट सिमिलर प्रॉपर्टी बताती है, इसलिए हम लाइट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के हिसाब से कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं दोस्तों, दो यूवी लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है 100 to 400 नैनोमीटर है। विजिबल लाइट, दिस लाइट में हम देख सकते हैं दोस्तों, उसकी रेंज 400 to 800 नैनोमीटर है। अगर दोस्तों विजिबल लाइट दुनिया में नहीं होती तो हम देख नहीं पाते दोस्तों जो आयर लाइट होती है उसकी रेंज 800 to 10⁵ नैनोमीटर लगभग होती है दोस्तों इस तरह से लाइट का क्लासिफिकेशन हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो ये दोस्तों, ये जो रेडियो मतलब एनएमआर लाइट दिखती है उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए दिस लाइट कैन बी यूज इन द ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविज़न। हमें टेलीफोन पे कांटेक्ट करना है, ज़्यादा दूर तक कांटेक्ट करना है तो हमें उसका वेवलेंथ क्या चाहिए दोस्तों, ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम एनएमआर लाइट ये टेलीफोन में, मोबाइल में यूज़ करती है दोस्तों। वैसे दोस्तों देखा जाए तो गैमा रेज आर यूजफुल इन मेडिसिन फॉर किलिंग द कैंसर सेल, क्योंकि गैमा रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इस एनर्जी की वजह से ये कैंसर सेल हम किल कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे यूजेस इस अलग अलग टाइप के लाइट के होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रा कैसा मिलता है हमें दोस्तों? वेरी सिंपल। फर्स्ट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट आर फिल्टर्ड बाय पासिंग थ्रू आइदर प्रिज्म और फिल्टरिंग। यहाँ से हम लाइट का फिल्टर करते हैं, हमें जो लाइट चाहिए यूवी या लाइट उसका अलग अलग एंगल में फिल्ट्रेशन करके हम वो लाइट स्ट्राइक ऑन दी मैटर के ऊपर लाइट स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद जो हमारा मैटर होता है वो लाइट एब्सॉर्ब करता है एंड एट दैट टाइम go to the excited state. The lifetime of the excited state is very very small. Therefore again come to the ground state by emission of light. Hence if light strike on the matter, then it can be some part of the light is absorbed and then again come to the ground state by emission of light. This absorption, how many amount of light is absorbed, which types of wavelength of light is absorbed, of which types of frequency of light is absorbed, or which types of wave number of light is absorbed. This can be done when light is strike on the detector, and this can be recorded in the recorder in the form of graph, and this graph is nothing but the spectra. इतना सिंपल प्रिंसिपल होता है दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी का। लाइट स्ट्राइक करने के बाद एब्सॉर्प्शन और इमिशन लाइट हम डिटेक्टर में डिटेक्ट करके उसका स्पेक्ट्रम हम रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो टाइप होती है दोस्तों, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमने एब्सॉर्प्शन लाइट डिटेक्ट की दैट रिक्वायर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमने इमिटेड लाइट के ऊपर फोकस किया और डिटेक्ट किया तो दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों in case of UV light, when UV light strike on the matter, at that time electronic excitation is take place, means electron का excitation होता है दोस्तों। if IR light strike on the matter, at that time vibration excitation is take place. if NMR light strike on the matter, then NMR active nuclear is excited, that is called nuclear excitation. ऐसे दोस्तों अलग अलग टाइप के लाइट में अलग अलग एक्साइटेशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इन UV spectroscopy we have majorly focus on the wavelength. in IR spectroscopy we have focus on the wave number, and in NMR spectroscopy
वी हैव फोकस ऑन दी फ्रीक्वेंसी। मतलब वी में हम वेवलेंथ मेजर करते हैं स्पेक्ट्रा के ऊपर से, आईआर में हम वो नंबर जिसे हम फ्रीक्वेंसी पर सेंटीमीटर भी कहते हैं, और एनएमआर में हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये यूवी स्पेक्ट्रा कैसा दिखाई देता है? यूवी स्पेक्ट्रा इस तरह का होता है दोस्तों। इधर हमने ग्राफ प्लॉट किया है एब्सॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। दोस्तों ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो लॉ है, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ आपने पढ़ा है दोस्तों। एब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से हम लाइट का ग्राफ निकालते हैं। इधर दो स्पेक्ट्रा मिलता है दोस्तों, वो ब्रॉड मिलता है क्योंकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन vibration as well as rotation excitation is also take place. Therefore, number of lines are obtained in UV spectra and this can be used broad spectra. दोस्तों UV spectra का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस लिए होता है? We know that with the help of UV spectra easily determine the length of conjugation of the double bond. In case of IR spectroscopy. IR spectroscopy is useful to determine the functional group of the compound. IR spectra इस तरह का होता है दोस्तों इधर IR spectra हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो UV spectra हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, because in IR spectra the plot the graph of transmittance versus wave number, and we know that the absorbance is inversely proportional to the transmittance. अगर इधर हम एब्सॉर्बन लेते हैं दोस्तों, तो जो पीक आएंगे वो पीक ब्रॉड तो होंगे लेकिन उसकी हाइट बहुत कम होंगी दोस्तों। उसके वजह से हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इजीली स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए दिस ग्राफ कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर, आई थिंक रिवर्स ऑर्डर ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रम में हम फंक्शन ग्रुप के साथ दोस्तों फिंगरप्रिंट रीजन का भी स्टडी कर सकते हैं। जो भी फिंगरप्रिंट रीजन हम देखते हैं उसके लिए जो लाइट हम पास करते हैं वो आईआर लाइट होती है दोस्तों। नेक्स्ट एनएमआर, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी एज ए पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोस्तों ये स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं इधर स्पेक्ट्रा बहुत सिंपल आया है, काफ़ी सिंपल है। इसमें कुछ पीक ऊपर नीचे दिखाई देते हैं दोस्तों, उसे हम मल्टीप्लेट कहते हैं दोस्तों। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया, कनेक्टिविटी, एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी महंगा होता है दोस्तों। लगभग कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए उसकी प्राइस होती है दोस्तों। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी लाइट अगर हमारे स्किन के ऊपर गिरती है तो कैंसर होने का डर होता है दोस्तों। एनएमआर लाइट इज ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द ब्रेन ट्यूमर इन आवर बॉडी। दोस्तों फिजिकल मेथड में कुछ ड्रॉबैक है। कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। द सेकंड ड्रॉबैक इज द ट्रेन पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।